کیسز کے نگران جج کے گھر پر فائرنگ، سپریم کورٹ کے جج مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں گھر پر فائرنگ، گزشتہ رات اور آج صبح 2 بار فائرنگ۔ چیف جسٹس خود جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پہنچ گئے، آئی جی کو بھی طلب کر لیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پر فائرنگ، پولیس کانسٹیبل کی مدعیت نے ایف آئی آر درج، دہشت گردی کی دفعات بھی شامل۔ جسٹس اعجاز کے گھر کی سیکیورٹی رینجرز نے سنبھال لی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پر فائرنگ، تحقیقاتی ٹیموں نے اہم شواہد حاصل کر لیے۔ صحن سے گولی کا ایک خول ملا، کچن کی کھڑکی پر بھی گولی کا ایک نشان پایا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل، جائے وقوع سے ملنے والا سکہ بھی فورنسک لیبارٹری بھجوا دیا گیا۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کے بیانات بھی ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پر فائرنگ کا نوٹس لے لیا، آئی جی سے رپورٹ طلب۔ ملزموں کی گرفتاری کا حکم، وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرسنل اسٹاف آفیسر کی جسٹس اعجاز کے گھر آمد، سپریم کورٹ انتظامیہ نے ملاقات کرانے سے انکار کر دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ میں اہم مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں۔ پیناما کیس بینچ میں بھی شامل تھے۔ معزز جج مقدمات کی سماعت کے لیے لاہور سے اسلام آباد روانہ۔ پاک فوج کی جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پر فائرنگ کی شدید مذمت، ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز ریاستی اداروں کا تحفظ یقینی بنائیں، بہترین امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پر فائرنگ، سپریم کورٹ پر حملہ ہے، وکلا تنظیموں کی شدید مذمت۔ چیف جسٹس کی اپیل پر ہڑتال کی کال واپس لے لی، ججز کو فول پروف سیکیورٹی دینے اور جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں سپریم کورٹ کے معزز جج کے گھر پر فائرنگ تشویشناک ہے، اعلیٰ عدالتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔ ججز کو دھمکانا ناقابل معافی عمل ہے، بلاول بھٹو کا رد عمل۔ خورشید شاہ کہتے ہیں عدلیہ سمیت اداروں کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر یہ دباؤ ڈالنے کی سازش کی گئی ہے تو افسوسناک ہے۔ نثار کھوڑو بولے شہباز شریف بڑے بھائی کو نااہل کرا کے اب شاید عمر قید دلانا چاہتے ہیں۔ جج کے گھر پر فائرنگ سسیلین مافیا کی عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے۔ عمران خان کہتے ہیں ایسے حربے کسی بھی جمہوری عمل میں ناقابل قبول ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے فائرنگ شہباز شریف نے غنڈوں کے ذریعے کرائی، پہلے بھی کہا تھا ملک جوڈیشل مارشل لاء کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پر فائرنگ، مسلم لیگ گاف کا جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ چوہدری شجاعت اور چوہدری پرویز الہی کی شدید مذمت، کہا ملزمان کو فوری گرفتار کر کے بے نقاب کیا جائے۔ جج کے گھر پر فائرنگ افسوسناک، ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے، خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق یکزباں۔ وزیر ریلوے کہتے ہیں ایک دوسرے کی تذلیل سے ملک نہیں چلتے، ملک کو ترقی کرنے دیں، یہاں فرشتوں کی حکومت نہیں آنی۔ الیکشن کمیشن کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے، لاہور میں پاکستان ریلویز کے فلائٹس کی افتتاحی تقریب، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کے نام کی تختی نصب کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے 1 مارچ کے بعد ترقیاتی منصوبوں پر اراکین اسمبلی کی تختیاں لگانے سے منع کیا تھا۔ شہباز
शहबाज शरीफ की एक और मुश्किल सानेहा मॉल टाउन का मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने दरख्वास्त जमा। शहबाज शरीफ के अलावा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और आहद चीमा के नाम भी शामिल। क्या बर्फ पिघल गई? नवाज शरीफ से चौधरी निसार अली खान की मुलाकात जल्द मुतवक्के। मुलाकात तय करने में शहबाज शरीफ ने किरदार अदा किया। क्या शहबाज शरीफ भी मुलाकात में होंगे मौजूद? वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से चौधरी निसार की एक और मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की चौधरी निसार के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मारवी मेमन फिर अपनी पार्टी के खिलाफ बोल पड़ी। कहती हैं जमात में सिर्फ जी हुजूरी है, मुखालफत करने वाले को बागी कहा जाता है और साइड पर कर दिया जाता है। कामयाब पार्टी क्यों मुश्किल में आई ये समझ नहीं आ रहा। कहते हैं अनीस कायम खानी को कि थोड़े से अपने कारकुनान भेज दें, हमें बादराबाद वालों को गिराना है। तुम्हें ख्याल नहीं आया उस वक्त? फोन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते। अनीस कायम खानी का फोन लो और उसको चेक करवाओ कि कॉल आई है या कॉल गई है। पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं फारूक सत्तार अनीस कायम खानी को फोन करके कहते हैं जलसा कामयाब करने के लिए कारकुन भेजें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शुक्रिया अदा किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ही खिलाफ कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान की एक और रुकन असम्बली समीता अफजाल पीएसपी में शामिल। एमएनएस एमपीएस की मर्जी के खिलाफ मार देने की धमकियां देकर, उन्हें उनके ख़ानदान को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देकर और जबर के ज़रिए, धौंस और धांधली के ज़रिए उनकी वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं। तो मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब को एड्रेस करते हुए कहता हूं कि ज़मीनी हक़ाइक़ के इल्म के बग़ैर ये दावा ना करें। मुझे वक्त दें, अगले हफ्ते मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से मिलना चाहता हूँ। फारूक सत्तार का मुस्तफ़ा कमाल पर वार। कहते हैं कत्ल की धमकियां देकर वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं। मर जाएंगे, पीएसपी में नहीं जाएंगे। निशात ज़िया और जमाल अहमद के भी पीएसपी पर इल्ज़ामात। फारूक सत्तार ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया, नोटिस लेने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी ने भी अपने एमपीएस को मुबैना धमकियों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा हम तशद्दुद की सियासत नहीं करेंगे, एमक्यूएम पहले की तरह मजबूत है, कारकुनों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है और पूरी करेंगे। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी सऊदी अरब रवाना। वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा। दराए अल खलीज फौजी मशकों की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें भी होंगी। इमरान नियाज़ी ने सियासत को बदनाम किया। सूबे को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया गया। अदालतें सियासी फैसले ना लें, मजहब के नाम पर सियासत का बिस्तर गोल करेंगे। असफंद यारवली का बुनेर में जलसे से खिताब। तहरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जनूबी पंजाब महा सेक्रेटरीट आमद। खुसरो बख्तियार और दीगर से मुलाकात। कहते हैं जनूबी पंजाब का सूबा अब बन के रहेगा। खुसरो बख्तियार का कल पंजाब असेंबली में करारदाद जमा कराने का ऐलान। चेयरमैन नैब ने ऑफशोर कंपनीज के 435 मालिकान के खिलाफ इंक्वायरी की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब किसी दबाव का शिकार नहीं होगा, पानामा तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे।
56 कंपनीज के रिकॉर्ड का इंतजार। नैब लाहौर के दफातर में छुट्टी के रोज भी अमला हाजिर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तमाम कंपनीज का मतलूबा रिकॉर्ड नैब को रात 9 बजे फराहम करने का हुक्म दे रखा है। लाहौर पार्किंग कंपनी में करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का मामला। नैब ने साबिक एमडी तासीर अहमद और जीएम ऑपरेशन फैजान वली को 17 अप्रैल को तलब कर लिया। अफगानिस्तान से पाक फौज पर एक और बुज़दिलाना वार। कुरम एजेंसी में सरहद पार से फायरिंग, 2 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। एफसी जवान सरहद पर बाड़ लगाने के इंतजामात का जायजा ले रहे थे। सिख यात्रियों ने खुद भारतीय हाई कमिश्नर को मिलने से इनकार किया। मुलाकात की इजाजत ना देने का तासुर गलत है। तर्जुमाने दफ्तर खारिजा का कहना है कि सिख बिरादरी ने बाबा गुरु नानक से मुताल्लिक मुतनाज़े फिल्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बैसाखी मेले ने मेल करा दिया। 70 साल से बिछड़े बहन भाई हसन अब्दाल में मिल गए। बहन भाई बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के लिए आए थे। कराची में इतवार को भी लोड शेडिंग ने छुट्टी ना की। कई इलाकों में बिजली गायब, शहरियों का बुरा हाल। पानी की अदम फराहमी पर सुपर हाईवे पर एहतजाज, अहले इलाका मुश्तइल। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ 27 अप्रैल को हड़ताल का ऐलान। सिराजुल हक का कहना है 20 अप्रैल को सीएम हाउस पर धरना देंगे। फिक्सिट का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने धरना। शहरियों के लिए खुशखबरी, बलोचिस्तान में बादल बरसने लगे। जुम्मे तक लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। कराची में गर्मी बरकरार रहने का इम्कान। मातली में मुसाफिर कोच ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। 4 अफराद जाँ बहक, 25 अफराद जख्मी। 5 की हालत तशवीशनाक। पिंडी भटिया के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई। एक फर्द जाँ बहक, 22 जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में जिनसी दरिंदों ने 14 साला लड़के को इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मुलजिम मकतूल नसीर को मजदूरी का झांसा देकर डेरे पर ले गए। ज्यादती के बाद जहरीली गोलियां खिला दी। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर के हॉस्पिटल्स में वेस्ट कमाई का जरिया बन गया। फुजलात तलफ करने की बजाय कबाड़ियों के हाथ फरोख्त किया जाने लगा। इस्तेमाल शुदा सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल से मौत भी बांटी जाने लगी। मकरूह धंधे में हॉस्पिटल्स का अमला भी मुलव्वस। मना की गई खातून को साथ क्यों लाए? सिंध में लड़की वालों का दूल्हे और बारातियों पर तशद्दुद, मार मार कर भगा दिया। दिल वालों को दुल्हनिया लिए बगैर ही लौटना पड़ा। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की पासिंग आउट परेड। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। जवानों ने इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा भी किया। सिंध रेंजर्स की वर्दी तब्दील करने का फैसला, नए यूनिफॉर्म की तस्वीर जारी। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी टेस्टिंग। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज़्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमज़ोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाज़ार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस
शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फराडुन। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुंचती?
इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं? सुर्ख, सफेद, नीले और पीले पेशावर में रंग रंग के परिंदों का मेला। खूबसूरत और चहचहाते परिंदों को देखने वाला हर कोई दीवाना हो गया। सदारती अवार्ड समेत कई मेडल्स भी पेट न भर सके। 50 साल मुल्क की खिदमत करने वाले बलोचिस्तान के गुलकार बशीर बलोच कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुख्तलिफ जबानों में 3000 गीत गाने वाला हुकूमती इमदाद का तलबगार। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुंचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुंचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। ये बात मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से।
مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے. رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے. میں ہوں فروہ وحید. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. کھیل، سیاست، معیشت سب پر ہوگی بات، مگر اس بریک کے بعد. سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں؟ جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک ثمرات کیوں نہیں پہنچتی؟ انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹائرنی آف میجورٹی؟ آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیس پر. دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. بازار سیاست میں ہر طرف شور، کہیں ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے. اس شور میں دب گئی جمہور کے ایوانوں میں جمہور کی آواز. حق بیانی کے قحط میں میری زبان قحط کا شکار ہوئی نہ ہوگی. آپ کی رائے محترم، مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام کے لیے. ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. مت بولو، میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں. بیٹے چپ ہو جاؤ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا، جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے. اوے نواز شریف، ہمارے سونیا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی SHO. کے بعد میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی ہے. آزا دو کون آزا فراڈ. ہم جیت گئے ہیں، اب ہم وزیر اعظم بنیں گے. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے. ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے. مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے. مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے. 12 گھنٹوں میں 2 بار فائرنگ کر دی. تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ٹیم اور JIT بنا دی گئی ہے. کے مال ٹاؤن میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پر دوبارہ فائرنگ. پولیس کی مدعیت میں FIR درج کر لی گئی. FIR میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں. گزشتہ رات 10:30 بجے گھر کے مرکزی گیٹ پر فائرنگ کی گئی. آج صبح 9:30 بجے گھر کے باورچی خانے کی کھڑکی کو نشانہ بنایا گیا. پولیس کے مطابق فائرنگ میں 9mm پستول استعمال کی گئی. فائرنگ کے بعد ججز انکلوئر کی سیکیورٹی مزید بڑھا کر جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر کے باہر رینجرز تعینات کر دی گئی. واقعے کی خبر ملتے ہی چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پہنچے. IG پنجاب کو بھی طلب کر لیا. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس آصف سعید کھوسا جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پہنچے. جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس انوار الحق بھی جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پہنچے اور فائرنگ سے متعلق تبادلہ خیال کیا.
वजीर आला पंजाब ने भी वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच में भी शामिल हैं। इसी बेंच ने गुज़िश्ता रोज सानिया मॉडल टाउन और दीगर केसेस में अहम फैसले जारी किए थे। सीनियर वकला और सियासतदानों ने मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की है। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने आला अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट बार ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली है। लाहौर मॉडल टाउन में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग। सीनियर वकला और सियासतदानों ने शदीद मजम्मत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि आला अदालती तहकीकात की जाए, मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करके बेनकाब किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि सिसिलियन माफिया की ये हरकत अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि ये शरीफ बरादरान के गुंडों की बदमाशी है। फवाद चौधरी बोले, तमाम उंगलियां शरीफ फैमिली और साद रफीक एंड कंपनी की तरफ उठ रही हैं। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने जस्टिस एजाजुल एहसन की रिहाइशगाह पर फायरिंग की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि फायरिंग वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। ISPR ने भी जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की। ISPR का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। फायरिंग के वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने एहतजाज की कॉल दी। बादशाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जिसके इलाके ईसा नगरी में चर्च के बाहर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा ईसा तरीन से। ईसा तरीन, बताइएगा इस फायरिंग के हवाले से। जी, आज ईसा नगरी के करीब चर्च हुआ है, वहाँ पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौका पर जख्मी हो गए। उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। केस में एक शख्स जाँ बहक हो गया, जो छोटी बच्ची थी, जबकि दूसरा शख्स अस्पताल में जाँ बहक हुआ। वाक़े में मजीद 3 अफराद जख्मी है जो अस्पताल में से दाखिल है। वाक़े की इत्तला मिलती ही पूरी तौर पर सिक्योरिटी दारों के एहलकार मौका पर पहुंच गया और उन्होंने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी, इलाके की नाकाबंदी कर दी। वाक़े के खिलाफ ईसा नगरी से ताल्लुक रखने वाले ईसाई बरादरी की बड़ी तादाद लोगों ने रोड आकर ब्लॉक किया। बहुत शुक्रिया आपका ईसा तरीन। उधर कुरम एजेंसी में सरहद पार से FC पर फायरिंग की गई। ISPR का कहना है कि फायरिंग से FC के 2 एहलकार शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। पाकिस्तानी जवानों ने अफगान शहरी आबादी को नुकसान के खदशे पर तहम्मुल का मुजाहरा किया है। आपको बताएं कि कुरम एजेंसी में सरहद पार से FC पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 FC एहलकार जाँ बहक जबकि 5 जख्मी बताए जाते हैं। कराची में मोटरसाइकिल सवार को रोकना ट्रैफिक पुलिस एहलकार के लिए जुर्म बन गया। मोटरसाइकिल सवारों ने तल्ख कलामी के बाद एहलकार पर तशद्दुद कर डाला। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। यह है कराची के इलाका रंचोड़ लाइन, जहां पर बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों को रोकना और चालान करना ट्रैफिक पुलिस एहलकार के लिए जुर्म बन गया। मोटरसाइकिल सवार कई अफराद ने अरशद नामी एहलकार को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना शहर की सड़कों पर ड्यूटी करने वाले इन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर होने वाला ये तशद्दुद कोई नई बात नहीं। माजी में भी 12 जनवरी 2016 को PIDC के करीब शफीक नामी शहरी ने ट्रैफिक एहलकारों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। 28 फरवरी 2018 को रिसाला कार लिफ्टिंग सेक्शन में तैनात ASI कफील पर वकील ने मुक्के और घूंसों की बरसात की थी। 24 न्यूज पर खबर नशर हुई तो वजीर दाखिला सिंध सोहेल अनवर सयाल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म देकर फौरी रिपोर्ट तलब की थी। दानियाल सैयद, 24 न्यूज, कराची। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। याद है नए मजेदार चोको फ्लेवर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं?
इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फराड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज,
रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है, वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे फुरज के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बिजली की बंदिश अपने जोबन पर रही। कच्ची आबादियों से लेकर पोश इलाकों तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला संगीन तरीन हो गया। शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। रिपोर्ट करेंगे इस बारे में अली रजा। कराची वालों का इतवार भी बिजली की लोड शेडिंग के नाम रहा। कच्ची आबादियों, पोश इलाके सभी बिजली के बहरान की लपेट में। कहीं 8-8 घंटे और तो और कहीं 12-12 घंटे बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। बिजली गायब तो पानी का बहरान भी संगीन हो गया। बाल्टियों के हमरा फकीर गोट के मकीन सरापा एहतजाज सड़कों पर आ गए। शहरियों का कहना है कि कराची के हर इलाके में इजाफी लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया ने शहरियों को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। गर्मी में हम कहाँ जाएं? 9 बजे को जाती है रात को और सुबह को 9 बजे आती है। भाई वही 2.5 घंटे परेशानी है। रात में 11:30 बजे जाती है तो और फिर आती है रात में जाके। इदारे हमारे यहाँ वर्किंग में नहीं है, इदारे कर ही नहीं रहे काम, तो फिर बताएं हम क्या करें। इधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि SSGC के इलेक्ट्रिक को 190 MMCFD गैस देने पर आमादा नहीं है। ECC के अहकामात होने के बावजूद ज़रूरत के मुताबिक गैस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से शहर में इजाफी लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन राइल अहमद के हमरा अली रजा, 24 न्यूज़ कराची। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान नया महाज खुल गया है। फारूक सत्तार ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में PSP को निशाना बनाया। बाद में मुस्तफ़ा कमाल ने न सिर्फ हिसाब चुकता किया बल्कि MQM की एक पतंग और काट दी। दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर इल्जामात लगाए। मेरे MPS को वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर करें और ये मजबूर हों, ना चाहते हुए जाएं। तो आज एक मौका आया है, अब मेरा कोई MPA PSP में नहीं जाना चाहिए। ये MPAs है, MNAs है, ये तंजीमी जिम्मेदारान है। तुमने यक जुम्बिश कलम इन सबको गद्दार कह दिया, इन सबको प्रेशर में आकर ज्वाइन करने वाला कह दिया। कारकुनों को इस्तेमाल करने की सियासत, कारकुनों को यूज करो, इस्तेमाल करो और टिश्यू पेपर की तरह फेंक दो। शब्बीर अहमद कायम खानी के साथ यही सुलूक हुआ। कल तक शब्बीर कायम खानी के घर पे तुम जाकर मिन्नतें कर रहे थे, वास्ते दे रहे थे। कल जब वो हमारे पास आ गया तो आज तुम उसके खिलाफ बयान देते हो, बाकायदा लिख कर बयान देते हो। महाजिरों के शदीद रद्द अमल को, उन्हें उनके सब्र के पैमाने को लबरेज होने से, उनके शदीद रद्द अमल को बाहर आने से उन्होंने कुर्बानी दे दी ना अपने कायद की। मुझे कहते हैं कि मैं एक दफा तो पतंग और MQM के नाम पर मुहाजिरों को ब्लफ करूंगा। मैं चौंक गया। मैंने कहा जी फारूक भाई,
तो उन्होंने रिपीट किया अपने जुमले को कि मैं एक दफा तो पतंग और MQM के नाम पर मुहाजिरों को ब्लफ करूंगा, मेरे पास एक गवाह है, जिंदा है। आज अगर हमारे साथ हो रहा है तो मुस्तफा कमाल भाई और अनीस कायम खानी भाई ये याद रखिए, कल आपके साथ भी यही होगा। फिर कल जबरदस्ती आपके लोग भी कहीं भेजे जाएंगे। मैं कितनी मर्तबा ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, कितनी मर्तबा मैं ये कहूं कि खुदा के लिए अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। अल्लाह की रजा के लिए काम किया था, और जो भी इंसानियत को तबाह करने के लिए रास्ते में आएगा, एक वक्त तक उसके लिए दुआएं खैर करेंगे, बाद में फिर उसको दफन करेंगे फिर। और फारूक सत्तार की सियासत दफन हो गई। आज ये बात कह रहा हूं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन PSP में नहीं जाऊंगा। मजीद शर से बचने के लिए मैं ये स्टेप उठाने जा रहा हूं, और मैं ऐलान करता हूं, पहली दफा किसी के लिए ऐलान कर रहा हूं कि पाक सरजमीन पार्टी के दरवाजे फारूक सत्तार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। अहम खबर दें आपको, नून लीग की रहनुमा मारवी मेमन एक बार फिर अपनी पार्टी के खिलाफ बोल उठी। कहती हैं कि इस जमात में सिर्फ जी हुजूरी चल रही है, मुखालिफत करने वाले को बागी कह दिया जाता है, मर्जी के खिलाफ आवाज उठाने वाले को साइड पर कर दिया जाता है। कामयाब पार्टी क्यों मुश्किल में आई ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मुश्किल में पार्टी को कड़वा सच बोलने वालों की जरूरत होती है, उनकी नहीं जो गुन गाते रहें। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे दोस्ती का मजा बढ़ाए। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाज़ार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। ये बात मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से।
मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय ईद से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA ईद से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सबर। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हयाल अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा। इफ्तिताही तकरीब सऊदी अरब के शहर अल जुबैल में कल होगी। मुश्तरका फौजी मशक़ें 1 महीने तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। दोनों सऊदी अरब पहुंच गए हैं।
इलाकों में दिफाई महारतें भी हासिल करेंगे। शरीक अफराद अस्करी स्ट्रैटेजिक और मंसूबे तैयार करने के लिए नए हुनर भी सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कश्मीरी बच्ची आसिफा बानो के अहले खाना आबाई इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मकतूला के वालिद का कहना है कि उनकी जानों को खतरा है, घरों को जलाने और मवेशियों को मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अफराद कुछ देर से कॉफी शॉप में अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। पुलिस एहलकार आए, गिरेबान पकड़ा और साथ ले गए। बात खेल की, आपको बताएं कि दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी टेस्ट टीम का ऐलान। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाज़ार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील।